خدا کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے جس کے وعدے سچ اور برحق ہیں اور اٹل ہیں۔ یہ دنیاوی وعدے نہیں ہیں یا کوئی دنیا کا بڑا افسر یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی بہن یا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں چیز تجھے دے دوں گا۔ وہ بدل بھی سکتا ہے، وہ اس دنیا سے جا بھی سکتا ہے وعدہ ہونے سے پہلے، لیکن خداوند جو ہے نہ وہ بدلنے والا ہے اور نہ وہ جانے والا ہے، کیونکہ اس کے وعدے سب اٹل اور فیصلے سچائی کے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھتے ہیں تو کلام میں سے دو چیزیں سیکھا کریں، گھر میں پڑھیں یا سنتے ہیں، دو چیزیں سیکھیں۔ کلام ایک تو وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا، اور دوسری بات برکت ایک قسم کی نہیں ہے، برکتیں علیحدہ علیحدہ کی ہیں۔ نعمت کی برکت ہے، شفا کی برکت ہے اور رزق کی برکت ہے، بہت سی اس کی برکتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی برکات ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے وعدے قائم رہتے ہیں وہ خدا پورا کرتا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے، کلام مقدس میں سے زبور 91 کی تلاوت کریں گے۔ زبور 91 اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے آج جو کل سیکھیں گے کہ خدا کون سے وعدے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ زبور 91 پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند سے کہوں گا، قرآن کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صحت کے پھندے سے اور ملک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا دے گا اور تجھے اس کے بازو کے نیچے اس کی سچائی ڈھال اور تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ بڑا مزیدار آیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے تو شیر ببر اور اوفی کو رونتے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چڑھاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔
हालेलुया। हमें कलाम मुकद्दस में से जो कुछ हमने ज़बूर 91 से हमने सीखा है, पढ़ा है, उसमें से खुदा के सब वादे हैं, खुदा के सब वादे हैं। और मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। पहले ये याद बता दिया कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में, यानी हक ताला का पर्दा कौन सा है? खुदा के साए के नीचे रहना, खुदा की इबादत में चलना, खुदा के कलाम में चलना, ये खुदा के साया है, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और ये नहीं कि हम खुदा के घर में आ चुके हैं तो खुदा इंटोर गारों के मुकाबले में नहीं रहते। हमें खुदा की इबादत में, खुदा के कामों में शामिल हाल रहना, दुआ करते रहना, सारा कुछ, और खुदा के कलाम के साए के नीचे चलना है ताकि उसका हाथ जो है हम पर। दूसरी याद बताती है, कहता है मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वो मेरा गढ़ है। आप और मैं भी ये कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा गढ़ और मेरी पनाह है और मेरी चट्टान है। फिर वो कहता है वो तुझे सिहोद के फंदे से और मुल्क वबा से छुड़ाए। सिहोद का फंदा यानी कि जो कोई जानवर का नाम है किसी का, तो उसके फंदे से वो बचा लेगा, दुश्मन के फंदे से बचा लेगा, कातल के फंदे से बचा लेगा, जानवर के फंदे से बचा लेगा जो हमें हलाक करने वाला है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मुल्क वबा से छुड़ाएगा। ये जो अब हमारे दरमियान अब 2-3 मुल्क वबा आ रही है। पहले वो डेंगू थी, पहले भी आया था, अब वो कोरोना भी आ गया, उससे भी खुदा ने हमें महफूज रखा। अब सैलाब आया, सैलाब से भी खुदा ने हमें महफूज रखा। एक और वबा है और वो है फिर दोबारा शुरू हुई है, वो डेंगू मच्छर। लेकिन जिनका ईमान खुदा पर है वो क्या कहता है कि मैं उसे मोहलक वबा से छुड़ाऊंगा। आप यकीन करके उसके वादों पर यकीन करेंगे तो यकीन है वो हमें छुड़ाएगा। वो कहता है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। हालेलुया। कितना अजीम वादा है खुदा का कि वो अपने परों से हमें छुपा लेगा, अपने साए के नीचे में रखेगा। किससे? बुरी वबाओं से। और लिखा है और वो तुझे अपने बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी कि खुदा के बाजुओं के नीचे हम जाएंगे। उसकी सच्चाई डाल और सिर पर है, क्योंकि उसके सारे वादे सच्चाई के हैं। और क्या है, बड़ी बात सुनने वाली है, तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन के उड़ने वाले तीर से। बस कहता ऐसा होता है कि रात इंसान चलता फिरता है, सोता है तो खौफ ज़्यादा हो जाता है। कहता तू रात के अंधेरे में भी नहीं डरेगा, और ना दिन को उड़ने वाले तीर से अगर कुछ भी कोई वबा आए तो तू नहीं डरेगा। ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है, कि जो दोपहर को वबा आती है, हलाकत होती है लोग, तो वो कहता है तू नहीं होगा। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे कि तेरे दाहिने इधर इर्द गिर्द 1000 लोग मर जाएंगे, और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक। हालेलुया। ये है खुदा का, ये खुदा का वादा है कि जो भी बीमारी होगी तेरे इर्द गिर्द सब कुछ मरेंगे, लाशें पड़ी होंगी उसी वबा से, लेकिन तेरे नजदीक ना आएगी। किनके नजदीक? जो खुदा की पनाह में आ जाते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा के साए में आ जाते हैं। खुदा ने उनके साथ वादा किया है कि तू तेरे नजदीक कोई वबा नहीं आई, लेकिन तू अपनी आंखों से देखेंगा, अपनी आंखों से। किनको? उन लोगों को जो शरीर हलाक हो गए हैं, शरीरों के अंजाम को किनको खुदा दिखाएगा? जो खुदा के लोग,
उनको कहता है कि तू अपनी आंखों से देखेगा शरीरों का हाल, जो खुदा के सच्चे और परस्तार लोग, पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। हमें जब ये कहता है खुदावंद तू मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। कि जो शख्स खुदा को अपना घर बना लेते हैं, खुदा को अपना मस्कन बना लेते हैं, उसके शाही खानदान में शामिल हो जाते हैं, उसके कबीले में शामिल हो जाते हैं, तो फिर खुदा के मस्कन के नीचे आ जाते हैं। जैसे एक बाप की फैमिली एक घर में रहती है, बच्चे रहते हैं, तो इसी तरह खुदा का भी एक मस्कन है, और वो कौन है? खुदा की कलीसिया। हालेलुया। वो कौन है? खुदा की कलीसिया है। जो कलीसिया में शामिल हो जाता है, उनके लिए वादा है कि तेरे खेमे के अंदर कोई बुरी वबा नहीं आएगी, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझ पर कोई आफत ना आएगी, और कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचे। ये वादे ऐसे नहीं है, ये हकीकत में खुदा ने हमारे साथ वादे किए। किन लोगों के लिए? जो लोग खुदा की पनाह में आ जाते हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपना मस्कन बना लिया है, जिन्होंने खुदा पर चट्टान बना ली है, जिन्होंने खुदा के घर पर अपना घर बन तमीर कर लिया है, वो है। और खुदा का घर कौन सा? खुदा का कलाम। तो जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में घर जैसा बनाएंगे, तो यकीनन हम उसमें सुकूनत करेंगे। फिर कहता है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। किनको देगा हुक्म? फरिश्तों को। कहाँ फरिश्ते और कहाँ हम इंसान, जो 24 घंटे उसके पास खड़े रहते हैं, कदूस 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 करते रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं। उनके सामने वो ऐसी आंख भी नहीं हिला सकते। लेकिन खुदा ने इंसान के लिए वो काम किया, वो कहता मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा क्या वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस। शरीर की सारी चालाकी मकारियों से वो हमें बचाएगा, हमें कोई जान नहीं पहुँचाएगा, पहुँचाता है कि हम हिफाजत में रहें। खुदा चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और खुदा चाहता है कि शरीर के हाथों से महफूज रहें। कैसे रह सकते हैं? जब हम खुदा के मस्कन में आ जाते हैं, खुदा की पनाह में आ जाते हैं। वो कहता है तू शेर बब्बर उसी को रोंदेगा, कि जो जंगल का शेर है, जिससे सब जानवर खौफ भी खाते, इंसान भी खौफ खाते। कहता है तू शेर को और अजदहा को, बड़े सांप को, तो उनको कमाल करेगा, उसी को रौंदेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जिन्होंने यीशु के साथ, खुदा के साथ दिल लगा लिया, और खुदा का वादा कर मैं उसे छुड़ाऊंगा। किससे? हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख तकलीफ से, हर बीमारी से, दुश्मन के हर एक चाल चलन के बुरे मंसूबों से वो हमें क्या करेगा? बचाएगा। जब हम ऐसा काम कर लेंगे, तो खुदा का वादा है, वो कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। जिन्होंने खुदा के नाम को पहचाना, खुदा कहता मैं उसको सरफराज करूंगा। मैं वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जब वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। ये है खुदा के वादे। इन वादों को ऐसे मामूली तौर ना समझे, इन वादों को परफेक्ट तौर पर समझे। ये सब के लिए है, किसी जात पात, किसी बरादरी या कोई कबीला नहीं है। खुदा सबका एक खुदा है और सब के लिए ये वादे हैं। और जिन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया है, खुदा के ये वादे उनके साथ कायम रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।